हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अब हम अभी जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि जिनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनको क्या कहा जाता है? पूरे विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग was born on 25th March 1914 in Iowa state of America. The production of wheat has been doubled in India, Pakistan and Mexico by a high-yielding variety of seeds developed by him. Borlaug is among those 7 persons in the world who got all the 3 awards with Nobel Prize, Presidential Medal of Freedom and Congressional Gold Medal. Borlaug has been honored with Padma Vibhushan of India in 2006. Father of the Green Revolution in India is Dr. M.S. Swaminathan. Under his leadership, high-yielding varieties of wheat has been successfully developed in India, and the use of high-yielding variety of seeds started in India. Apart from this, special emphasis was given on the increased use of fertilizers and adequate development of irrigation facilities. The program for the use of developed seeds in India was started by the Corporation of Rockefeller Foundation of USA. First stage of Green Revolution has been carried out in India from 1966 to 1981. Its second stage was implemented in the period of 1981 to 1995. Green Revolution's third stage was started in the year 1995 and covered almost all the areas of the country. The most benefited crop in production and productivity by the Green Revolution in India is wheat. Before Green Revolution, the production of wheat all over India was 12.3 million ton, whereas in 2002-2001 it became 69.68 million ton, and in 2013-14 it was 69.68 million to कितना हो गया इससे बढ़कर 95.85 million ton, and in 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना है? 109.5 मिलियन टन है 2020-21 में। ठीक है, वीट का प्रोडक्शन कितना है इंडिया में 2020-21 में? फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 109.5 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन। नेक्स्ट है, द इंक्रीज अकर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन yield per hectare. After wheat, the highest impact of the green revolution was seen on rice cultivation. The main plant in the green revolution was the wheat of Mexican species, which was brought from Borlaug's International Maize and Wheat Improvement Center CIMMYT. Till 2020-21, fourth advance estimates the production of wheat reached up to 3,464 kg per hectare. High-yielding variety of seeds, fertilizer, irrigation, use of technology, marketing and industrialization of agriculture is known as Green Revolution. On 28th July 2000, the central government launched a new national agricultural policy. Under this policy, the concept of rainbow revolution proposed. In this policy, all the revolutions directly or indirectly related to agricultural activities were included. Various revolutions and its areas. ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है?
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मीट और टोमेटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। नेक्स्ट है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पोटैटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑनियन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ मीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या थे? सभी एरियाज थे, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे national zero till seed cum fertilizer drill developed by Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology. National zero till seed cum fertilizer drill developed by Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology. This machine enables to sow directly after paddy harvest without prior seed bed preparation. National zero till seed cum fertilizer drill developed by Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology. This machine enables to show directly after paddy harvest without prior seed bed preparation, ठीक है। चलिए अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 20th century during decade of 60s. Green Revolution started in the 7th decade in the year 1966, which was its first stage and underwent till 1981. In the first stage, Haryana, Punjab and Western Uttar Pradesh were included. The second stage commenced from 1981 till 1995 and third stage started in 1995, which included all the states of India. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाय। इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन क्या है? द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाय MS स्वामीनाथन। द टर्म evergreen revolution was used for increasing agricultural production in India. It was used by The term evergreen revolution was used by father of India's green revolution, Dr. M.S. Swaminathan. Dr. M.S. Swaminathan described evergreen revolution as increasing productivity in perpetuity without ecological harm. Dr. Swaminathan has proposed the following steps for the second green revolution. Number 1, use of biofertilizers and compost along with chemical fertilizers. Number 2, rainwater harvesting and land development to get facilities like industries. Number 3, emphasis on agricultural economic zones and contract farming. क्या कहा गया है? द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया. द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म वॉज यूज्ड बाय फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन. Dr. MS Swaminathan described evergreen revolution as increasing productivity in perpetuity without ecological harm. Dr. Swaminathan has proposed the following steps for the second green revolution. First step है use of biofertilizers and compost along with chemical fertilizers. Second step है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड डेवलपमेंट टू गेट फैसिलिटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज़. क्या है सेकेंड स्टेप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड डेवलपमेंट टू गेट फैसिलिटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज़. थर्ड स्टेप है
Emphasis on agricultural economic zones and contract farming. Emphasis on agricultural economic zones and contract farming. Next question है question number 3. Norman Ernest Borlaug, who is regarded as the father of the Green Revolution, is from which country? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नॉर्मन बोरलॉग कौन सी कंट्री से थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है. नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग was born on 25th March 1914 in Cresco, Iowa, US. He took up an agricultural research position in Mexico, where Norman Ernest Borlaug developed semi-dwarf, high-yield, disease-resistant wheat variety. During the mid-20th century, Norman Borlaug led the introduction of these high-yielding varieties combined with modern agricultural production techniques to Mexico, Pakistan, and India. He is one of the Norman Ernest Borlaug is one of the seven people to have won the Nobel Peace Prize, the Presidential Medal of Freedom, and the Congressional Gold Medal. Norman Ernest Borlaug was also awarded the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor, in 2006. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबल प्राइज़ इन विच फील्ड? इसका आंसर हो जाएगा पीस में. ठीक है. ही इज़ वन ऑफ द 7 पीपल टू हैव वोन द नोबल पीस प्राइज़. ठीक है. नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ पीस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज़? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग is the father of green revolution in the world. Next question है question number 6. Who among the following was closely associated with the green revolution? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन. डॉक्टर MS स्वामीनाथन is known as the father of Indian green revolution for his leadership and success in introducing and further developing high-yielding varieties of wheat in India. Dr. MS Swaminathan was closely related to the Green Revolution in India. Next question है question number 7. Green Revolution means. Green Revolution का means क्या है? High Yielding Variety Program. 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है. ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स. ठीक है. तो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हाई यील्ड वैराइटी प्रोग्राम. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, मॉडिफाइंग farm equipment and substantially increasing chemical fertilizers. In India, Green Revolution began in 1966-1967. High Yield Varieties Program started in India with the help of Rockefeller Foundation based in the USA. Next question है question number 8. Which one of the following most appropriately describes the nature of green revolution of the late 60s of 20th century? इसका आंसर हो जाएगा सीड फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी. ठीक है. क्या है ये? क्या क्वेश्चन दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी? तो इसका आंसर है सीड फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? वीट प्रोडक्शन से है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू वीट प्रोडक्शन. द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1966-1967 which led to increase in food grain production. The main development was higher yielding varieties of wheat which increased the production to 2.5 times. Green Revolution this credit is given to American. The credit of Green Revolution is given to American agronomist Dr. Norman Borlaug and MS Swaminathan of India. क्वेश्चन क्या है? Green Revolution is related to wheat production.
Green Revolution in India was started in 1966 to 1967, which led to increase in food grain production. The main development was higher yielding varieties of wheat, which increased the production of 2.5 times. Its credit is given to American agronomist Dr. Norman Borlaug and M.S. Swaminathan of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द हाइस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. इसका आंसर हो जाएगा वीट. Wheat is the highest beneficiary of the green revolution in both production and productivity, followed by rice. The production of wheat was 12.3 million ton before the green revolution, which increased to 69.68 million ton in 2000 to 2001. In 2020-21 fourth advance estimates, it was recorded at 109.5 million tons. This became possible because of the increase in yield per hectare. Which one of the following crops is the highest beneficiary of the green revolution in both production and productivity? क्या पूछा गया है? Which one of the following crops is the highest beneficiary of the green revolution in both प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो इसका आंसर हो जाएगा वीट. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन से? बोथ प्रोडक्शन में भी प्रोडक्टिविटी में भी, जिसके क्या है इंक्रीमेंट हुआ है. ऐसी कौन सी क्रॉप है? ऐसी क्रॉप है वीट. वीट इज़ द हाइस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फॉलोड बाय राइस. सेकेंड नंबर पे है राइस. ठीक है. The production of wheat was 12.3 million ton before the Green Revolution, which increased to 69.68 million tons in 2000 to 2001. In 2020 to 21 fourth advance estimates, it was recorded at 109.5 million tons. 109.5 मिलियन टन जो wheat है उसका प्रोडक्शन हुआ है in 2020-21 में. This became possible because of the increase in yield per hectare. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस्ड मैक्सिमम. इसका आंसर हो जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. इंडिया अचीव्ड मैक्सिमम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट आफ्टर इंडिपेंडेंस. दिस growth was propelled by the green revolution introduced in 1966 to 1967. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच वॉज द मेन क्रॉप यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसका आंसर है मैक्सिकन वीट. In the decade of 1970, the introduction of high-yielding variety of seeds and the increased use of chemical fertilizers and irrigation is termed as Green Revolution in India. The credit for Green Revolution is given to Norman Borlaug in global context and M.S. Swaminathan in the Indian context. The main crop used in Green Revolution was Mexican wheat, received from Borlaug's International Maize and Wheat Improvement Center based in Mexico. The main crop used in Green Revolution was Mexican wheat, received from Borlaug's International Maize and Wheat Improvement Center based in Mexico. Next question है question number 14. As a result of Green Revolution, the yield per hectare of wheat touched the record figure of 2000 kilogram. As a result of Green Revolution, the yield per hectare of wheat touched the record figure of. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2000 किलोग्राम. As a result of the Green Revolution, ठीक है, as a result of the Green Revolution, the yield per hectare of wheat touched a record figure of 2000 kilogram, thrice as earlier. कितना है? पहले से 3 गुना बढ़ गया. ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट टच्ड ए रिकॉर्ड फिगर ऑफ 2000 किलोग्राम, थ्राइस एज अर्लियर. 2020-21 2020-21 में जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स है, यील्ड ऑफ वीट क्रॉप इज़ 3464
किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या है, ये यील्ड है वीट क्रॉप की 2020-21 का जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट टच्ड द रिकॉर्ड फिगर ऑफ 2000 किलोग्राम। As a result of the green revolution, the yield per hectare of wheat touched a record figure of 2000 kilogram, thrice as earlier, means क्या है, पहले से 3 गुना बढ़ गया, thrice हो गया, thrice as earlier। 2020-21 fourth advance estimates yield of wheat crop is कितना है 2020-21 में 3464 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी क्या हो गई, यील्ड हो गई वीट क्रॉप की 2020-21 का जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग कितनी है, 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 2000 से बढ़कर कितनी हो गई है 2020-21 में, 2020-21 में हो गई है वीट क्रॉप की यील्ड 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, दैट इज़ 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम 3,464 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था इंडिया में उसके लिए उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इट एम्स एट फर्दर, पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स एट फर्दर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन एरियाज ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट, इट एम्स एट एक्सटेंडिंग शीट वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी टू एरियाज विच हिटherto कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4। 4 क्या है, इट एम्स एट इंटीग्रेटिंग क्रॉपिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। जो सेकेंड स्टेज आया उसमें क्या क्या किया गया, इट एम्स एट इंटीग्रेटिंग क्रॉपिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका एम्स था कि इट एम्स एट एक्सटेंडिंग सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी टू एरियाज विच हिटherto कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो बचे हुए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, अब वहाँ पर भी जो एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं सीड वाटर फर्टिलाइज़र की, उनका यूज़ करके उन क्षेत्रों को भी क्या किया जा रहा था, बेनिफिट किया जा रहा था जहाँ पर कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ नहीं मिल पाया था। ठीक है, और क्या है फोर्थ स्टेटमेंट, इट एम्स एट इंटीग्रेटिंग क्रॉपिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये क्या है, दीज आर द statements about second green revolution in India. The second green revolution in India aims at extending seed, water, fertilizer and technology to areas which could not be benefited from the green revolution and integrating agriculture with animal husbandry, social forestry and fishing. It does not aim to yield the crop other than used in the green revolution in the beginning. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था, जैसा कि क्या है स्टेटमेंट 3 में दिया है कि इट एम्स एट इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स अदर देन दोज यूज्ड फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द बिगिनिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट डज नॉट एम टू यील्ड द क्रॉप अदर देन यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द बिगिनिंग। तो स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 4 सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन बाय यूजिंग द गिवन कोड। तो इसका आंसर क्या है, इसमें क्या करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, तो पहला है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बिल्कुल सही है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन। ठीक है, थर्ड है
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसके बाद फोर्थ है रूरल रोड एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल फोर आर द कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहला कंपोनेंट है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, सेकंड है इरिगेशन, थर्ड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फोर्थ है रूरल रोड एंड मार्केटिंग। ठीक है, ऑल फोर आर द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन 1965 द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कनेक्टिविटी टू द मार्केट प्लेसेस through road led to the increase in production needed to make the country self-sufficient in food grains, which was called as Green Revolution. Thus, all the four components were part of Green Revolution. ध्यान रखिएगा कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है और साथ ही जो रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग है, ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है। ये भी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके अंदर आएगा। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल रोड एंड मार्केटिंग, ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है। हम इसको तो इजीली पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया गया था थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके बाद क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो अब ध्यान रखिएगा कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है इसको भी इंक्लूड किया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और साथ ही जो रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग है वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक कंपोनेंट है। इन 1965 द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, दैट इज हाइब्रिड सीड्स, इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, rural electrification and connectivity to the marketplaces through roads led to the increase in production needed to make the country self-sufficient in food grains, which was called as Green Revolution. Thus, all the four components were part of the Green Revolution. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, असर्शन और रीज़न दिया गया है। बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और फिर बताना है कि अगर ठीक है तो क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे असर्शन को। असर्शन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। क्या दिया गया है असर्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके कारण क्या हुआ, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में उसमें क्या है, काफ़ी ग्रोथ होती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रीज़न क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैव बीन एग्रीवेटेड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो जो रीज़न है आर वो भी एज ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपने आप में, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। रीज़न क्या दिया गया है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैव बीन एग्रावेटेड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एज ए स्टेटमेंट रीज़न सही है, बट क्या है, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, द adoption of new agricultural technology, high yielding variety of seeds, plant breeding, irrigation etc. increased the प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इन सभी चीज़ों ने क्या किया, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। क्या पढ़ा हमने, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज ए पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, द अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, प्लांट ब्रीडिंग, इरिगेशन etc.